Hallo DLG-Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक अनसीन A1 का एग्ज़ाम कुछ टिप्स के साथ और इस जैसी एक और वीडियो जो कि पार्ट 1 था मैं बना चुकी हूँ, वो भी आप चेक कर लीजिएगा अगर जल्दी ही आपका स्टार्ट डॉइच 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। So, los geht's! ये हैं जी ह्योगन की इंस्ट्रक्शंस जो कि मैं काफ़ी सारी वीडियोस में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसको यहाँ पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट लिसनिंग टास्क की तरफ। ह्योगन टाइल 1 में हमें 6 टास्क दी जाती हैं और वो डायलॉग्स होते हैं जिनको सुनकर हमने मार्क करने होते हैं टास्क आ पे उड़त से। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि ये रेगुलर पैटर्न पर नहीं है, प्रैक्टिस एग्जाम है, इसलिए इसकी जो टास्क हैं वो 1 bis 6 नहीं बल्कि A bis F होंगे और यही पैटर्न बाकी सारी टास्क जो आगे टाइल्स वाई और टाइल जगाए है उनमें भी कैरी होगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बतानी थी कि मैं इसमें आपको समझाऊंगी नहीं कि जो करेक्ट आंसर है वो किस तरह से करेक्ट है। उसके लिए आप मेरी पिछली 3 वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आपको लिसनिंग एक्सरसाइजेज और टास्क वगैरह करवाई हुई हैं। इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने जस्ट ऑडियो टास्क सुननी है और सॉल्व करती जानी है। अगर आप अब तक पेंसिल और पेपर साथ लेकर नहीं बैठे थे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वो आप ले लें और टाइल 1 में A bis F लिखें, टाइल स्वाय में A bis D लिखें और टाइल डगाए के लिए A bis A लिखें। और इनको लिखकर आप जैसे जैसे ऑडियोज प्ले होती जाएंगी उनके हिसाब से आपने उनको सॉल्व करना है और जब सारी ह्योगन कंप्लीट हो जाएगी आपको आंसर्स नज़र आएंगे। तो ये था। और टाइल 1 में जैसे कि हमें पता है हमें जो ऑडियोज हैं वो स्वयमाल यानी कि 2 बार प्ले कर कर बताई जाती हैं। अब देख लेते हैं बाइस्पील। Wie spät ist es jetzt? अभी क्या टाइम हुआ है? 7:30, 8 Uhr oder 18 Uhr? Teil 1. Beispiel. Wann fängt der Film an? Ich glaube um 8 Uhr. Bist du fertig? Können wir gehen? Einen Moment, ich muss noch telefonieren. Es ist jetzt aber schon 7:30. Wir müssen gehen. Komm jetzt. Was? Schon 7:30? Ja, dann rufe ich Sibylle lieber morgen früh an. Ich bin fertig. Gehen wir. Beispiel. Wann fängt der Film an? Ich glaube um 8 Uhr. Bist du fertig? Können wir gehen? Einen Moment, ich muss noch telefonieren. Es ist jetzt aber schon 7:30. Wir müssen gehen. Komm jetzt. Was? Schon 7:30? Ja, dann rufe ich Sibylle lieber morgen früh an. Ich bin fertig. Gehen wir. A. Wie reist sie von Köln nach Berlin? वो कैसे सफ़र करेगी Köln से बर्लिन तक? Mit dem Zug, mit dem Auto oder mit dem Flugzeug? A. Ich will nach Berlin am Samstag. Sie könnten mit dem Zug fahren. Das kostet 75 Euro. Kann ich auch nach Berlin fliegen? Es gibt einen sehr billigen Flug von Köln nach Berlin. Wunderbar, das mache ich. Ich fahre mit dem Auto nach Köln und dort nehme ich das Flugzeug nach Berlin. A. Ich will nach Berlin am Samstag. Sie könnten mit dem Zug fahren. Das kostet 75 Euro. Kann ich auch nach Berlin fliegen? Es gibt einen sehr billigen Flug von Köln nach Berlin. Wunderbar, das mache ich. Ich fahre mit dem Auto nach Köln und dort nehme ich das Flugzeug nach Berlin. B. Was essen Sie? वो क्या खाते हैं? Brötchen, Pommes frites oder Salat? B. Die Pommes frites kosten 3 Euro. Was meinst du? Pommes frites und Cola. Ach nein, lieber einen Salat. Oder gibt es das hier nicht? Sie haben Fleischsalat. Ich esse nicht gern Fleisch. Tja, dann gibt es nur noch Brötchen.
mit Tomaten und Mozzarella. Weißt du was? Du hast recht. Wir nehmen doch die Pommes frites. Einverstanden. B. Die Pommes frites kosten 3 Euro. Was meinst du? Pommes frites und Cola. Ach nein, lieber einen Salat. Oder gibt es das hier nicht? Sie haben Fleischsalat. Ich esse nicht gern Fleisch. Tja, dann gibt es nur noch Brötchen mit Tomaten und Mozzarella. Weißt du was? Du hast recht. Wir nehmen doch die Pommes frites. Einverstanden. C. Wann kommt der Zug an? Train कब आ रही है? 15:32 Uhr, 15:30 Uhr oder 15:13 Uhr? C. Ich möchte nach Kassel. Gibt es heute noch einen direkten Zug? Nein, Sie müssen einmal umsteigen. Der Zug fährt um 12:32 Uhr hier am Hauptbahnhof ab. Und wann komme ich in Kassel an? Um 15:13 Uhr. Um 15:13 Uhr? Das ist aber spät. Gibt es keinen anderen Zug? Nein, leider nicht. C. Ich möchte nach Kassel. Gibt es heute noch einen direkten Zug? Nein, Sie müssen einmal umsteigen. Der Zug fährt um 12:32 Uhr hier am Hauptbahnhof ab. Und wann komme ich in Kassel an? Um 15:13 Uhr. Um 15:13 Uhr? Das ist aber spät. Gibt es keinen anderen Zug? Nein, leider nicht. D. Wie kommt sie zum Hotel Frankfurter Hof? वो कैसे जाती है होटल और ये उसका नाम है. Mit dem Taxi, mit der Straßenbahn oder zu Fuß? B. Entschuldigung, wie komme ich zum Hotel Frankfurter Hof? Das ist nicht weit. Wollen Sie zu Fuß gehen? Naja, mein Koffer ist ziemlich schwer. Wie weit ist es denn zu Fuß? Circa 20 Minuten. Sie können natürlich auch ein Taxi nehmen. Ein Taxi. Oder Sie fahren mit der Straßenbahn. Das ist eine gute Idee. Nehmen Sie die Linie 21. Sie müssen in der Tannenstraße aussteigen. Am besten fragen Sie den Fahrer. B. Entschuldigung, wie komme ich zum Hotel Frankfurter Hof? Das ist nicht weit. Wollen Sie zu Fuß gehen? Naja, mein Koffer ist ziemlich schwer. Wie weit ist es denn zu Fuß? Circa 20 Minuten. Sie können natürlich auch ein Taxi nehmen. Ein Taxi. Oder Sie fahren mit der Straßenbahn. Das ist eine gute Idee. Nehmen Sie die Linie 21. Sie müssen in der Tannenstraße aussteigen. Am besten fragen Sie den Fahrer. ए. Wie alt ist Georg? Georg कहते हैं जॉर्ज को. जर्मन लैंग्वेज में अक्सर जो नाम होते हैं उनको वो अपने अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करते हैं. तो जॉर्ज कितने साल का है? 9 Jahre, 19 Jahre oder 15 Jahre? E. Große Geburtstagsparty heute, nicht wahr? Ja, heute hat Georg Geburtstag. Stell dir vor, 19 Kinder kommen zu seiner Party. Furchtbar. Ich habe auch einen Sohn, er ist aber schon 15 Jahre alt. Er organisiert seine Partys lieber allein. Und wie alt ist Georg? Er ist jetzt 9. Also dann, viel Spaß bei der Geburtstagsparty. E.
Geburtstagsparty heute, nicht wahr? Ja, heute hat Georg Geburtstag. Stell dir vor, 19 Kinder kommen zu seiner Party. Furchtbar. Ich habe auch einen Sohn, er ist aber schon 15 Jahre alt. Er organisiert seine Partys lieber allein. Und wie alt ist Georg? Er ist jetzt 9. Also dann, viel Spaß bei der Geburtstagsparty. F. Wie viel kostet das Ticket? टिकट की क्या कॉस्ट है? ऑप्शंस 155 Euro, 150 Euro oder 150 Euro 50. F. Ich brauche ein Flugticket nach Oslo. Ich möchte nächste Woche am Mittwoch fliegen. Was kostet das? Möchten Sie ein einfaches Ticket oder auch zurück? Ist es mit Rückflug billiger? Nein, das ist der gleiche Preis. Hin und zurück kostet 301 Euro und der einfache Flug kostet 150,50 Euro. Dann nehme ich den einfachen Flug. F. Ich brauche ein Flugticket nach Oslo. Ich möchte nächste Woche am Mittwoch fliegen. Was kostet das? Möchten Sie ein einfaches Ticket oder auch zurück? Ist es mit Rückflug billiger? Nein, das ist der gleiche Preis. Hin und zurück kostet 301 Euro und der einfache Flug kostet 150,50 Euro. Dann nehme ich den einfachen Flug. ह्यूगन टाइल 2 में हमें अनाउंसमेंट्स सुनाई जाती हैं और ये हम स्टूडेंट्स को इसलिए टफ लगता है क्योंकि इसकी ऑडियोज जस्ट एक बार प्ले की जाती हैं और वोकेबलरी भी इसमें डिफ़िकल्ट होती है। तो इसका सल्यूशन ये है कि हम जितने भी मॉडल टेस्ट सॉल्व करें उनके टाइल्स वाई की ऑडियोज को इतनी बार सुने और जो भी नए वर्ड्स उसमें हमारे लिए आए उनको याद कर लें। तो आइए आप देख लेते हैं बाइस्पील और इसमें हमने रिश्टिश oder Falschmark करना होता है। Die Schüler sollen am Eingang warten. स्टूडेंट्स को एंट्रेंस पर वेट करना चाहिए और ये इन्होंने ऑलरेडी हमें रिश्टिश करके बता दिया है। ऑडियो सुन लेते हैं। Teil 2. Beispiel. Liebe Schülerinnen und Schüler, der Bus hält jetzt gleich vor dem Deutschen Museum. Steigt bitte aus und geht zum Eingang. Dort wartet ihr dann alle. Wir treffen uns am Eingang des Museums. A. Die Fahrgäste sollen rechts aussteigen. पैसेंजर्स को राइट साइड पर उतरना चाहिए। A. Liebe Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Hamburg-Altona. Wir bitten die Fahrgäste auf der linken Seite auszusteigen. Bitte steigen Sie in Fahrtrichtung links aus dem Zug. B. Der Zug fährt von Gleis 7 ab. ट्रेन डिपार्ट कर रही है, जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। B. Achtung, Achtung, der Intercity 733 von Köln nach Berlin, planmäßige Abfahrt um 11:34 Uhr, fährt heute nicht von Gleis 7 ab, sondern von Gleis 16. Der Intercity 733 von Köln nach Berlin, planmäßige Abfahrt um 11:34 Uhr, fährt heute vom Gleis 16 ab. C. Die Fahrgäste fahren mit dem Bus nach Lübeck. पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे बस से लुबेक की तरफ।
C. Flug Conan Air Nummer 4538 nach Lissabon kann wegen des schlechten Wetters nicht von Hamburg abfliegen. Die Fluggäste werden gebeten, zum Flugsteig A33 zu kommen. Von dort fährt ein Bus zum Flughafen Lübeck. Die Fluggäste des Conan Air Flugs nach Lissabon bitte zum Flugsteig A33. Sie fahren mit dem Bus zum Flughafen Lübeck. D. काथरीन वाटेट im Restaurant. काथरीन इंतजार कर रही है रेस्टोरेंट में. D. Die Mutter der kleinen Katrin soll bitte zum Informationsschalter im ersten Stock kommen. Wir haben Katrin allein im Restaurant gefunden. Es geht ihr gut. Sie wartet jetzt im ersten Stock am Informationsschalter auf ihre Mutter. hören Teil 3 में हमें जो 5 टास्क दी जाती हैं वो भी मल्टीपल चॉइस की होती हैं और हमने मार्क करना होता है A, B oder C. इसकी ऑडियोज भी हमें 2 बार सुनाई जाती हैं. Beispiel. Wie ist die neue Telefonnummer? नया टेलीफोन नंबर क्या है? और ये आपके पास ऑप्शंस हैं. Teil 3. Beispiel. Kostenlose Auskunft. Unsere Telefonnummer hat sich seit dem 1. Januar geändert. Sie erreichen uns jetzt unter der Nummer 34701. Beispiel. Kostenlose Auskunft. Unsere Telefonnummer hat sich seit dem 1. Januar geändert. Sie erreichen uns jetzt unter der Nummer 34701. A. वो treffen sich die Mädchen. लड़कियां कहाँ मिल रही हैं? ऑप्शंस. Vor der Bank, vor der Post oder im Buchgeschäft. A. Hallo Gisela, hier ist Marion. Ich bin noch im Buchladen. Mein Auto steht vor der Bank. Ich komme dich sofort abholen. Wir treffen uns vor der Post. Warte da am Eingang auf mich. Ich bin gleich da. A. Hallo Gisela, hier ist Marion. Ich bin noch im Buchladen. Mein Auto steht vor der Bank. Ich komme dich sofort abholen. Wir treffen uns vor der Post. Warte da am Eingang auf mich. Ich bin gleich da. B. Was soll Karl noch einkaufen? Karl को still क्या खरीदना चाहिए? noch का मतलब है still या yet. Options: Wein, Gemüse oder Brot. B. Hallo Karl, du weißt doch noch, dass du heute einkaufen musst? Mein Bruder kommt heute Abend auch. Ich will eine Gemüsesuppe machen und mein Bruder bringt eine Flasche Wein mit. Aber wir haben kein Brot mehr. Das musst du unbedingt noch einkaufen. Tschüss, bis später. B. Hallo Karl, du weißt doch noch, dass du heute einkaufen musst? Mein Bruder kommt heute Abend auch. Ich will eine Gemüsesuppe machen und mein Bruder bringt eine Flasche Wein mit. Aber wir haben kein Brot mehr. Das musst du unbedingt noch einkaufen. Tschüss, bis später. C.
Wann wollen die Leute kommen? लोग कब आना चाहते हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं am Donnerstag, am Samstag oder morgen। अगर morgen स्मॉल m के साथ हो तो उसका मतलब होता है कल, जो आने वाला है tomorrow, और अगर कैपिटल M के साथ हो तो उसका मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह। C. Hier ist die Reparaturwerkstatt Meier. Heute ist Donnerstag, der 8. Mai. Leider können wir morgen nicht zu Ihnen kommen. Wir können aber eventuell übermorgen am Samstagvormittag bei Ihnen arbeiten. Würde Ihnen das passen? Rufen Sie uns bitte auf jeden Fall an. C. Hier ist die Reparaturwerkstatt Meier. Heute ist Donnerstag, der 8. Mai. Leider können wir morgen nicht zu Ihnen kommen. Wir können aber eventuell übermorgen am Samstagvormittag bei Ihnen arbeiten. Würde Ihnen das passen? Rufen Sie uns bitte auf jeden Fall an. D. Wann kann der Mann kommen? आदमी कब आ सकता है? Am Sonntag, am Abend oder am Vormittag? D. Hallo Annette, hier ist Martin. Ich will dir ja gern bei deinem Computer helfen, aber wann können wir uns treffen? Heute Abend habe ich keine Zeit und am Vormittag bist du ja immer in der Universität. Wie sieht es denn am Sonntag bei dir aus? Am Sonntag habe ich Zeit, vielleicht am Nachmittag. Ruf mich doch bitte an. D. Hallo Annette, hier ist Martin. Ich will dir ja gern bei deinem Computer helfen, aber wann können wir uns treffen? Heute Abend habe ich keine Zeit und am Vormittag bist du ja immer in der Universität. Wie sieht es denn am Sonntag bei dir aus? Am Sonntag habe ich Zeit, vielleicht am Nachmittag. Ruf mich doch bitte an. E. Wann ist der Arzt in der Praxis? डॉक्टर, praxis कहते हैं डॉक्टर्स ऑफिस को ना, जिसके लिए Arztpraxis भी वर्ड यूज होता है। तो डॉक्टर ऑफिस में कब है? Am Wochenende, am Nachmittag oder am Vormittag? E. Hier ist die Praxis von Dr. Buschwein. Unsere Praxis ist geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Am Nachmittag erreichen Sie mich telefonisch unter der Nummer 88743. Am Wochenende wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. E. Hier ist die Praxis von Dr. Buschwein. Unsere Praxis ist geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Am Nachmittag erreichen Sie mich telefonisch unter der Nummer 88743. Am Wochenende wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. हमारा Hörenteil कंप्लीट हो गया है, और अगर आपने मेरे साथ मिलकर ये सॉल्व किया है तो मेरे साथ अपने आंसर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके कितने करेक्ट हुए। और ये बेसिकली आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं पिछले जो एग्ज़ाम्स वीडियोस बना चुकी हूँ उनमें मैंने डिटेल के साथ आंसर्स बताए हुए हैं कि ह्यूगन में जो करेक्ट आंसर्स हैं वो कैसे हैं। अब हम देख लेते हैं आंसर्स। वीडियो को यहाँ पॉज करके आप अपने आंसर्स मैच करके देख सकते हैं कि कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट। लेसन टाइल में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं जिनमें हमने लेटर्स और एडवर्टीजमेंट्स को पढ़कर टास्क को सॉल्व करना होता है। तो आइए देख लेते हैं इसका Teil 1। Sind die Sätze 1 bis 5 richtig oder falsch? Kreuzen Sie an। सेंटेंसेस 1 से 5 करेक्ट है या फिर फॉल्स है, क्रॉस करके मार्क कीजिए।
इसमें हमने लेटर्स को पढ़कर टास्क को सॉल्व करना होता है। तो जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, पहले अगर आप टास्क को पढ़ लें तो हमें पता चल जाता है कि हमने जो लेटर पढ़ना है उसमें क्या इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम में या मॉडल पेपर सैम्पल्स में हमें बाइस्पील सॉल्व करके बता देते हैं ना, ये हमारे लिए काफ़ी इजी कर देते हैं चीज़ें, ताकि हम जज कर सकें कि जो उन्होंने सॉल्व टास्क करके बताई है वो किस तरह से करेक्ट है। रियल लाइफ एग्ज़ाम में तो हमें बाइस्पील पढ़ने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी जब भी आप मॉडल सैम्पल पेपर सॉल्व करें तो बाइस्पील को भी ध्यान से पढ़कर देखें कि जो मार्क किया हुआ है उन्होंने आंसर वो कैसे करेक्ट है। अच्छा, ये है मिशाएल विल am Sonntag nach Frankfurt fahren। मिशाएल चाहता है, यानी कि माइकल चाहता है संडे को फ्रैंकफर्ट जाना, और ये रिश्तिश है। अब हम Aufgabe 1 और 2 देख लेते हैं। मिशाएल trifft am Wochenende seine Geschwister। माइकल मिल रहा है वीकेंड में अपने बहन भाइयों से। Michael will Sane in der nächsten Woche anrufen। माइकल चाहता है जाने को नेक्स्ट वीक कॉल करना। anrufen to make a telephone call। टाइल 1 में लेटर या ईमेल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमें एक ईमेल दी गई है जो कि मिशाएल लिख रहा है जाने को। हेलो जाने, danke für deine Mail। शुक्रिया तुम्हारी मेल का। Leider können wir uns am Sonntag nicht treffen। Unfortunately हम संडे को नहीं मिल सकते। Ich fahre nach Frankfurt। मैं जा रहा हूँ फ्रैंकफर्ट। तो इससे हमें पता चला कि वो संडे को फ्रैंकफर्ट जा रहा है, तो इसलिए हमने बाइस्पील भी देख ली। अब हम आगे देख लेते हैं। Meine Mutter hat Geburtstag। Da gibt es ein großes Familientreffen। मेरी अम्मी की बर्थडे है तो बहुत बड़ी फैमिली गैदरिंग है। Meine Schwester kommen aus Amerika। Meine Brüder sind auch da। मेरी बहन आ रही है अमेरिका से, मेरे भाई भी वहाँ होंगे। तो इससे मुझे लग रहा है कि हमें अपने Aufgabe 1 का आंसर मिल गया है। क्या आपने जज कर लिया है कि रिश्तिश है या फाल्श? Aufgabe 1 रिश्तिश है क्योंकि इस लाइन में वो बता देता है कि वो अपनी बहन से और भाइयों से भी मिलेगा जो कि Familientreffen में आ रहे हैं। तो जो श्वेस्टा और भूरा होता है उन सबको मिलाकर गेश्विस्टा बनता है, जिसका मतलब होता है भाई बहन। उसके बाद वो कहता है Ich fahre am Montagmorgen zurück। Vielleicht können wir in der nächsten Woche einmal zusammen essen। Rufst du mich an। पूछ रहा है ना, तो वो कह रहा है कि मैं मंडे मॉर्निंग वापस आ रहा हूँ, मे बी फिर हम नेक्स्ट वीक कुछ मिलकर इकट्ठा खा सकते हैं। तुम मुझे कॉल करोगी क्या? Rufst du mich an। Tschüss मिशाएल। तो वो पूछ रहा है कि तुम मुझे कॉल करोगी क्या, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेक्स्ट वीक मिशाएल चाहता है जाने को कॉल करना, तो फिर तो बहुत एविडेंट है कि ये रिश्तिश है या फाल्श। Aufgabe 2 फाल्श है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप देती चलूँ। आपने नोट किया होगा कि इस लेटर में डाइने का डे कैपिटल उन्होंने किया है और डू का भी इन्होंने कैपिटल किया हुआ है। तो टिप ये है कि आपको पता है कि जब हम फॉर्मल फॉर्म जो कि जी है आपके वाली, वो तो हमेशा ही चाहे सेंटेंसेस हों चाहे लेटर राइटिंग हो, कहीं भी हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। लेकिन जहाँ तक लेटर राइटिंग में डू वाले लेटर की बात है, उन लेटर्स की जो कि इनफॉर्मल होते हैं, तो वो आपके पास चॉइस है कि उसको आप कैपिटल के साथ लिखना चाहते हैं या स्मॉल के साथ। दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो फॉर्मल लेटर्स हैं ना, वो हमेशा आप जी और ईनन को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। Aufgabe 3 है Anke möchte im Mai nach Leipzig fahren। Anke चाहती है मई में लाइप्सिश जाना, ट्रैवल करना। Richtig oder falsch? 4 Sie will in Leipzig studieren। वो चाहती है लाइप्सिश में पढ़ना। और Nummer 5 है Anke kennt die Stadt schon ein bisschen। Anke को मालूम है सिटी का थोड़ा बहुत ऑलरेडी।
इस शोन और जो उमलाउट वाला शोन होता है, इनमें डिफरेंस है कि उस शोन का मतलब है खूबसूरत, प्यारा, और इस शोन का मतलब है ऑलरेडी, पहले से ही। तो अब हम देख लेते हैं कि लेटर या ईमेल क्या आया है। सबसे पहले आनके ने जगह और डेट लिख दी है जहाँ से वो लिख रही है और जिस दिन लिख रही है। तो 7. अप्रैल, रोस्टॉक। लीबे अंजेलिका, अंजेलिका को लिख रही है वो, डियर अंजेलिका। वी gefällt es dir in Leipzig, तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या लाइप्सिश में, कैसा लग रहा है। Hast du viele Freunde, क्या तुम्हारे बहुत दोस्त हैं। Ich möchte dich im nächsten Monat besuchen, मैं चाहती हूँ तुम्हें नेक्स्ट मंथ विजिट करना। अच्छा, नेक्स्ट मंथ है, यहाँ पर महीना तो उसने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर जो है उसने अप्रैल लिखा है, और जो aufgabe 3 है हमारा, उसमें लिखा है कि आनके चाहती है im Mai nach Leipzig fahren। तो फिर सोचें कि ये रिश्तिश है या फाल्श। लेट्स सी द आंसर। ये रिश्तिश है क्योंकि अप्रैल के बाद मई ही आता है। उसके बाद वो कहती है वी फिंडेस्ट टू दस, तुम्हें ये कैसा लगा कि मैं आना चाहती हूँ ना, विजिट करना चाहती हूँ। Kann ich bei dir wohnen, क्या मैं तुम्हारे यहाँ रह सकती हूँ। Ich bleibe nur 3 oder 4 Tage, मैं सिर्फ 3 या 4 दिन रुकूंगी, रहूंगी। Bleiben, to stay. Du gehst am Morgen in die Universität und ich besichtige die Museen, तुम सुबह को यूनिवर्सिटी चली जाओगी और मैं विजिट करूंगी म्यूजियम्स। Ich war noch nie in Leipzig, मैं कभी भी लाइप्सिश में नहीं थी। और मुझे लग रहा है कि इस लेटर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमारे तीनों aufgaben का आंसर छुपा है। आप भी सोचिए कि aufgabe Nummer 4 और 5 का आंसर क्या है। अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। aufgabe 4 फाल्श है क्योंकि आनके खुद नहीं पढ़ना चाहती लाइप्सिश जाकर। यहाँ पर मेंशन किया गया है यूनिवर्सिटेट क्योंकि वो अंजेलिका चाहती है। आनके की जहाँ तक बात है वो तो सिर्फ म्यूजियम्स विजिट करना चाहती है, तो इसलिए फिर फिया फाल्श है। फुन्फ लिखा था कि आनके को शहर के बारे में थोड़ा पता है, जो कि यहाँ से हमें पता चल गया कि वो तो कभी लाइप्सिश गई ही नहीं, तो इसलिए फिर फुन्फ भी फाल्श है। रियल लाइफ एग्जाम में अगर ऐसा हो कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसके बाद लेटर कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। इसको हम जल्दी से लेकिन देख लेते हैं। Am Abend kann ich etwas kochen oder wir holen uns eine Pizza, शाम को मैं कुछ पका सकती हूँ या हम ले सकते हैं एक पिज़्ज़ा। होलन, पिक कर सकते हैं एक पिज़्ज़ा। Wir können dann zusammen ins Theater und in die Disco gehen, हम मिलकर जा सकते हैं, इकट्ठे मिलकर। सुजामन ना, इसका सिनोनिम है gemeinsam, उसका मतलब ही होता है टुगेदर। थिएटर जा सकते हैं और डिस्को जा सकते हैं। Das ist ein wunderbares Programm, oder? ये कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम है, या फिर पूछ रही है ना कि ज़बरदस्त है कि नहीं है। Bitte antworte mir sofort, प्लीज़ मुझे जल्दी जवाब दो। उसके बाद वो लेटर एंड कर देती है ग्रीटिंग के साथ, Liebe Grüße von Anke। Lesen Teil 2. Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10. Welche Adresse passt? कौन सा एड्रेस सूट करता है? Kreuzen Sie an A oder B. मार्क कीजिए क्रॉस के साथ A या B। Beispiel: Sie suchen einen deutschen Brieffreund. Er soll in Süddeutschland wohnen. आप ढूंढ रहे हैं एक जर्मन लेटर फ्रेंड, जिसको हम पेन फ्रेंड भी बोलते हैं, तो उसको साउदर्न जर्मनी में रहना चाहिए। ऑप्शंस आपके पास हैं और आ करेक्ट है। यहाँ पर इसको पॉज करके आप रीड कर सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर है वो किस तरह से सही है। Aufgabe 6 है Sie möchten wissen, wo scheint heute in Deutschland die Sonne? आप जानना चाहते हैं कहाँ आज जर्मनी में सूरज चमक रहा है। ऑप्शंस आपके पास हैं। आ में Sonnenparadiese in Deutschland,
सूरज की जन्नतें जर्मनी में, और उसके बाद 3 उन्होंने डिटेल कुछ दी हुई है 3 वर्ड्स की सूरत में। ज़ोलारियम, वेलनेस, फिटनेस। वेलनेस फिटनेस बिल्कुल इंग्लिश जैसे हैं। ज़ोलारियम का मतलब है टैनिंग शॉप या टैनिंग बेड, जिसमें जाकर आप स्किन टैन करवाते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस वेबसाइट से आपको पता चलेगा कि आज जर्मनी में सूरज चमक रहा है कि नहीं? अब बे देख लेते हैं। Das Wetter in Deutschland, मौसम जर्मनी में, नॉर्थ-डॉइचलैंड, Süddeutschland और टेम्परेचर। कितना एविडेंट है ना कि क्या आंसर करेक्ट है, राइट? बे करेक्ट है। सिर्फ वर्ड जोनन देखकर आपने ये नहीं समझना कि आ करेक्ट है। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि मतलब क्या है टास्क का, और डिटेल्स क्या क्या दी गई हैं दोनों तरह के एड्स में। Sie wollen im Internet deutsche Bücher kaufen. आप चाहते हैं इंटरनेट में जर्मन बुक्स खरीदना, और Anzeige A है 60 Buchläden in Deutschland, 60 bookshops in Germany, aktuelle Informationen, current informations, Café und Leseräume, Cafeteria और Reading rooms, और Adressen, addresses। Anzeige B में है 60,000 Titel online bestellen, 60,000 किताबें ऑनलाइन ऑर्डर करना। और क्या आपके पास ऑप्शंस हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। बेलेट्रिस्टिक कहते हैं फिक्शन बुक्स को, ज़ाखबुशा कहते हैं नॉन फिक्शन बुक्स को, जैसे कि वो बुक्स जो कि फैक्ट पर बनाई गई हों, फैक्चुअल बुक्स को ज़ाखबुशा कहते हैं। और बिल्ड पेंडे कहते हैं पिक्चर बुक्स को। आई नो कि ये तीनों वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं आइंस लेवल के लिए, लेकिन ध्यान में रखने की बात हमारे लिए ये है कि हम फर्स्ट लाइंस में ध्यान दें कि वो हमें क्या कह रही हैं और हमारे टास्क से रिलेटेड कौन सा ऐड है। बे करेक्ट है क्योंकि हमने ये करना था कि इंटरनेट से किताबें ख़रीदनी थी, तो ख़रीदना और बेस्टेलन ऑर्डर करना तकरीबन सेम ही है। ये ऐड इसलिए भी सूटेबल नहीं है क्योंकि इसमें जस्ट हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी डिफरेंट बुक स्टोर्स या बुक शॉप्स की जो कि जर्मनी में है, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा हमें रीडिंग रूम्स के बारे में पता चल रहा था, उनके एड्रेसेस पता चल रहे थे, तो इसमें हम कुछ भी ऑर्डर नहीं करा सकते थे। अलबत्ता उस बुक शॉप में जाके हम पढ़ सकते थे, बुक्स ले नहीं सकते थे, ऑर्डर या ख़रीद नहीं सकते थे, तो इसलिए फिर बे करेक्ट है। Nummer 8. Sie suchen ein kleines Apartment in Hamburg. आप ढूंढ रहे हैं एक स्मॉल अपार्टमेंट हैम्बर्ग में। ऑप्शंस हैं आपके पास। आ में हाउस काउफन, हाउस मीटन, Wohnung kaufen, Wohnung mieten, Angebot der Woche। घर खरीदना, घर रेंट पर लेना, अपार्टमेंट खरीदना, अपार्टमेंट रेंट पे लेना, और ऑफर ऑफ द वीक। Anzeige B में है Wohnen im Hamburger Hafen। हैम्बर्ग की बंदरगाह जो कि पोर्ट है या हार्बर है, उसमें रिहाइश। Wie lebt man auf 40 Quadratmeter? किस तरह रहता है कोई 40 क्वाड्राटमीटर में। Wohnen wie im Süden, रहना ऐसे जैसे कि साउथ में, साउदर्न जर्मनी की बात हो रही है। Pflanzen für die Dachterrasse, पौधे आपकी टेरेस के लिए। अच्छा, ये जो जूडन यहाँ पर लिखा है साउथ जर्मनी में, क्योंकि हमें पता है कि हाम्बर्ग ist इन नॉर्थ डॉइचलैंड, ठीक है। हाम्बर्ग liegt इन नॉर्थ डॉइचलैंड। तो आपको क्या लग रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट? आ या बे में से क्या ऑप्शन है, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं एक छोटा अपार्टमेंट हैम्बर्ग में। तो सोचें कि क्या आंसर है, फिर देखते हैं इसको। आ करेक्ट है क्योंकि इस अनसाइगे में वोनुंग काउफन और वोनुंग मीटन की बात हो रही थी। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो हाम्बर्ग लिखा था और इस ऐड में भी हाम्बर्गर हाफन लिखा हुआ है, तो बे क्यों करेक्ट नहीं है? बे असल में ऐसा है जैसे ब्लॉग्स नहीं होते जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना डिफरेंट चीज़ों की। तो यहाँ पर भी आपको रहने से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, और एक इंसान कैसे 40, 50, 60 जितने भी क्वाड्राट मीटर में कैसे रह सकता है, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और हमें मिल रही है। यहाँ पर कहीं भी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि आपको अपार्टमेंट्स या घर
खरीदने को या रेंट पर लेने को मिलेंगे। तो रियल लाइफ एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करना है। जो टास्क में वर्ड्स दिए गए हैं और जो ऑप्शंस में वर्ड्स दिए गए हैं, आंखें बंद करके उनको मार्क नहीं करना, बल्कि ध्यान से दोनों आंसाइगन देखने हैं और जिसकी सेंस बनती हो उसको मार्क करना है। Sie suchen ein günstiges Restaurant für die Geburtstagparty Ihrer Tochter. आप ढूंढ रहे हैं एक सस्ता रेस्टोरेंट अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी के लिए। Anzeige A है शिफास गास्टहोफ am See। गास्टहोफ कहते हैं होटल को और ऑन द लेक, लेक पर है ये। Gute bürgerliche Küche, अच्छा प्लेन कुकिंग ना, घर जैसा खाना, अच्छा खाना। im Gartenrestaurant, गार्डन रेस्टोरेंट में। besonders zu empfehlen, स्पेशली क्या रिकमेंड किया जाता है? frischer Seefisch, फ्रेश लेक फिश, यानी ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें। Kinderspielplatz neben dem Haus, बच्चों के खेलने की जगह भी साथ ही है। für Gruppen bitte reservieren, ग्रुप्स के लिए प्लीज़ रिजर्व कीजिए। और आगे टेलीफोन नंबर है। Anzeige B है Mark Duffel macht es möglich, नाम है जी कि वो पॉसिबल बनाता है। Am Montag und Donnerstag Nachmittag ist bei uns Platz für die Kleinen, मंडे और थर्सडे नाखमिताग दोपहर में, दोपहर के बाद हमारे यहाँ जगह है छोटों के लिए ना, छोटे बच्चों के लिए। Pomfrits und Luftballons, Würstchen und Clowns, फ्रेंच फ्राइज हैं, बैलून्स हैं, सॉसेजेस हैं, क्लाउन्स हैं। Melden Sie sich an und erklären Sie uns Ihre Wünsche, आप रजिस्टर कीजिए और बताइए हमें आपकी विशेस। Für große Gruppen ab 25 besonderer Preisnachlass, इसमें भी काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दोनों में ही तकरीबन, लेकिन थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस एग्जाम्स करें ना तो उनमें भी जो जो नए वर्ड्स आएँ तो आप उनको ज़रूर याद कर लें, तो इस तरह की टास्क फिर आपको आसान लगेंगी। तो यहाँ पर है बड़े ग्रुप्स के लिए, और वो बड़े ग्रुप्स कितने हैं? 25 लोगों से ऑनवर्ड्स के ना, उनके लिए स्पेशल प्राइस डिस्काउंट है। नाखलास कहते हैं डिस्काउंट, और आगे नंबर दिया गया है। तो डिस्काउंट है और ऊपर आपको क्या चाहिए था? ein günstiges Restaurant, फिर कौन सा ऐड सूटेबल है? बे करेक्ट है। वैसे तो हमें ऊपर भी पता चल रहा था कि बच्चों की चीज़ें काफ़ी स्पेशल उन्होंने दी हुई हैं, क्लाउन्स और सॉसेजेस वगैरह और बेलून्स, ज़ाहिरी बात है बड़े लोगों का क्या काम बेलून्स के साथ, लेकिन यहाँ पर गुंस्टिगस रेस्टोरेंट की बात थी तो इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने प्राइस डिस्काउंट दिया है, तो इसलिए बे ज़्यादा सूटेबल ऐड है Aufgabe 9 के लिए। Aufgabe 10, Sie suchen ein Hotel in Erfurt, Sie wollen am Abend im Hotel essen, आप ढूंढ रहे हैं एक होटल इस जगह में, सिटी का नाम है, और आप चाहते हैं शाम में होटल में खाना। Anzeige A है होटल माइगिंग, और आगे इसकी डिटेल्स हैं। Freundliches Familienhotel am Stadtpark, alle Zimmer mit Bad und TV, फ्रेंडली फैमिली होटल है जी सिटी पार्क में, सारे कमरों में बात है और टीवी है। Kein Verkehrslärm, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का शोर नहीं। Bei uns können Sie wirklich ausruhen, हमारे यहाँ आप वाकई ही wirklich really रिलैक्स कर सकते हैं। Schöner Frühstücksraum, प्यारा नाश्ते का कमरा, ब्रेकफास्ट रूम। 60 Euro pro Person inklusiv Frühstück, 60 यूरो पर पर्सन है इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट। तो देखते हैं फिर Anzeige B में क्या है। Anzeige B में है जी जॉली होटल एयरफर्ट मिटन इन der Stadt, शहर के सेंटर में है। फोये कहते हैं लाउंज को, कॉन्फ्रेंस सेले कॉन्फ्रेंस हॉल्स, वेलनेस बेराइश वेलनेस एरिया, फ्रूस्टुक्सराउम जैसे कि यहाँ पर दिया गया था, ब्रेकफास्ट रूम, रेस्टोरेंट्स इम हाउस, रेस्टोरेंट्स भी हैं होटल में, ठीक है, और प्राइसेस। तो आपको क्या लगता है कि होटल आप ढूंढ रहे हैं एयरफर्ट में और आप चाहते हैं शाम में
होटल में खाना खाना। तो कौन सा सूटेबल है, आ या बे? अनसाइगे बे सूटेबल है क्योंकि हम शाम में खाना खाना चाहते थे और रेस्टोरेंट्स इन हाउस हमें बताता है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए कि हम शाम में होटल में रहकर खाना खा सकें। और एक और चीज़ से भी हमें पता चलता है, यहाँ पर एयरफोर्ट सिटी की बात की जा रही थी और यहाँ पर भी ये होटल एयरफोर्ट में है। तो दो चीज़ें आपको कॉमन मिली हैं जो कि अनसाइगे बे का बताती हैं कि aufgabe 10 का करेक्ट आंसर है। लेजन टाइल डगाए में हमारे पास 5 aufgaben होती हैं 11 bis 15 और हमने उनको मार्क करना होता है richtig oder falsch। बाइशपील हमें सॉल्व करके बता दी गई है जो कि टाइम के शॉर्टेज की वजह से हम डिटेल से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसको यहाँ पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। Aufgabe 11 है Eingang Restaurant, एंट्रेंस रेस्टोरेंट की, जिस पर ये नोटिस है इसको हम देखेंगे। लेकिन टास्क है Eintritt und Essen kosten heute 5 Euro, एंट्रेंस और खाना आज कीमत है 5 यूरो। Heinos Kneipe an der Ecke, क्नाइपे कहते हैं पब को, ऑन द कॉर्नर एक पब है जिसका नोटिस हम पढ़ने लगे हैं। Heute Abend लाइव म्यूजिक und Tanz, आज शाम लाइव म्यूजिक और डांस। Die vier Banderos, पता नहीं क्या नाम है, बहरहाल ये कोई बैंड है। Spielen und singen für Sie, वो आज बजाएंगे और गाएंगे आपके लिए। बजाएंगे जाहिर सी बात है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ही बजाएंगे, तो आपकी नहीं बजाएंगे। अच्छा, Eintritt und ein Getränk 5 Euro, Abendessen ab 8,50 Euro। तो एंट्री है और ड्रिंक है 5 यूरो और डिनर है 8 यूरो 50 सेंट से ऊपर। अब ना फ्रॉम टिश रिजर्विंग और टेलीफोन करना पड़ेगा टेबल रिजर्व करवाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि रिश्टिश है या फाल्श? तो ये फाल्श है क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस और खाना 5 यूरो का बताया था और यहाँ से हमें पता चलता है कि एंट्रेंस और ड्रिंक 5 यूरो का है, खाना उसमें इंक्लूडेड नहीं, खाने के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। Aufgabe 12 an der Straßenbahn Haltestelle, Straßenbahn बस स्टॉप पर ये नोटिस लगा है और आपके लिए टास्क है Im August können Sie die Linie 18 in der Schillerstraße nehmen, अगस्त में आप ले सकते हैं रूट 18 की। ये बस की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि हाल्टेस्टेले है ना। In der Schillerstraße nehmen, Schillerstraße में आप ले सकते हैं रूट 18 की बस। नोटिस में है जी, नोटिस आपको पता है कि लगा हुआ है Straßenbahn हाल्टेस्टेले पर, तो ये बस स्टॉप और है जिस पर ये नोटिस लगा है। Vom 1.7. bis 30.8. ist diese Haltestelle wegen Reparaturarbeiten verlegt. Abfahrt Linie 18, Haltestelle Schillerstraße। इससे इस डेट तक ये बस स्टॉप रिपेयर वर्क की वजह से नहीं अवेलेबल, फंक्शनल नहीं है, ठीक है। तो डिपार्चर है रूट 18 से हाल्टेस्टेले शिलास्ट्रासे से। तो 18 जो बस स्टॉप आप रूट लेंगे 18, वो बस स्टॉप शिलास्ट्रासे से चलेगी बस ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगस्त की बात मेंशन की गई थी और यहाँ पर भी अगस्त की है। तो आपको क्या लगता है कि ये रिश्टिश है या फाल्श? ये रिश्टिश है क्योंकि जो रूट 18 है और शिलास्ट्रासे की बस सर्विस चल रही है उसमें कोई मसला नहीं हुआ। जो मसला हुआ है वो है स्ट्रासनबान हाल्टेस्टेले पर, वहाँ से बसेस नहीं चल रही। तो इसलिए फिर यहाँ पर पूरा का पूरा अगस्त का महीना मेंशन किया गया था कि बस नंबर 18 चलेगी शिलास्ट्रासे हाल्टेस्टेले पर, ठीक है। तो इसलिए फिर ये रिश्टिश है। Aufgabe 13 in der Sprachschule, लैंग्वेज स्कूल में, और ये है जी Öffnungszeiten Sekretariat, सेक्रेटरी के ऑफिस के ओपनिंग टाइम्स। Sie können an jedem Nachmittag mit der Sekretärin sprechen, आप हर आफ्टर मिड डे सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं। रिश्टिश oder falsch? यहाँ पर टाइमिंग है जी Montag bis Donnerstag 10 bis 13 Uhr, Mittwoch und Freitag 17 bis 19 Uhr।
तो इससे हमें पता चला कि ये Vormittag का टाइम था और ये Nachmittag का टाइम था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर आफ्टर मिड डे हम बात कर सकते हैं। तो क्या हर आफ्टर मिड डे हम बात कर सकते हैं कि नहीं? ये फॉल्स है क्योंकि हम सिर्फ मिटवॉch और फ्राइटाग को नाचमिटाग में बात कर सकते हैं। Im Buchladen, बुक शॉप पर ये नोटिस लगा है। Hier kann man Schulbücher billiger kaufen. इधर कोई स्कूल बुक्स सस्ती खरीद सकता है। Tauschmarkt für Schulbücher. Tauschmarkt कहते हैं, tauschen, tausch कहते हैं चेंज करना, एक्सचेंज करना, किसी एक को अपनी चीज़ देकर उससे उसकी चीज़ ले लेना tauschen होता है। तो उसकी मार्केट लगी है, बेसिकली मार्क्ड ना, ठीक है, जो कि स्कूल बुक्स की है। और नोटिस में डिटेल है, Bringt uns eure alten Schulbücher. हमारे पास लाइए अपनी पुरानी स्कूल बुक्स। Ihr findet hier die Bücher für das nächste Schuljahr. यहाँ पर मिलेंगी आपको किताबें नेक्स्ट स्कूल ईयर के लिए। Außerdem Stifte, Kugelschreiber, Hefte. उसके अलावा पेंसिल्स, पेन्स, बुक्स, ये नोटबुक्स हैं, हेफ्टे, बुक होती है बुक और हेफ्ट होती है नोटबुक, ठीक है, तो ये उसका प्लूरल इस्तेमाल हुआ है हेफ्टे। Alles zum halben Preis, हर चीज हाफ प्राइस में। तो क्या लगता है आपको कि क्या आंसर करेक्ट है? ये रिश्तिश है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हर चीज हाफ प्राइस में। लेजन की आखिरी टास्क है जी an der Theaterkasse, थिएटर के बॉक्स ऑफिस पर ये नोटिस है। Sie wollen mit ihrer Freundin ins Theater gehen, aber sie wollen zusammensitzen. आप चाहती हैं अपनी फ्रेंड के साथ थिएटर जाना, लेकिन आप चाहती हैं साथ बैठना। Heute Abend geht es nicht. आज शाम ये नहीं हो सकता। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसको हमने जहन में रखना है। नोटिस है जी, Die letzten Eintrittskarten für heute Abend. आखिरी एंट्री टिकट्स आज शाम के लिए। पाकेट कहते हैं फ्लोर को या फिर स्टॉल को, ठीक है। गाये 7 Platz 2, गाये कहते हैं रो को, तो 7th रो में जगह नंबर 2 खाली है। पाकेट गाये 15 Platz 3 24, ये 2 जगह फ्री हैं रो नंबर 15 में। स्वाइटा रंग, रंग कहते हैं रैंक को ना, ठीक है, वो जो स्टेयर्स टाइप नहीं बनी होती उनको। गाये 3 Platz 8, तो ये 4 हमारे पास जगह खाली हैं और आज शाम हम थिएटर में इकट्ठे बैठकर थिएटर देखना चाहते हैं। तो ये क्या आंसर है इसका फिर? ये रिश्तिश है क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि आज शाम ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कि आप इकट्ठे बैठकर थिएटर देखें। तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो फिर ये रिश्तिश है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ नोट कीजिए, अगर यहाँ पर ड्राई और फिया लिखा होता ना तो वो 2 सीट्स साथ होती, तो फिर इसी टास्क ने फल्श हो जाना था। श्राइबन की इंस्ट्रक्शंस ये हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। श्राइबन टाइल 1 में हमें एक फॉर्मूला फिल करना होता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसमें से वर्ड्स को ढूंढकर। तो ये फॉर्मूला है जिसको हम देख लेते हैं। फैमिलियन नाम है, फोआ नाम है, लिखा हुआ है ऑलरेडी। जो कि हमने टास्क करनी है वो ये 5 हैं। उनमें से फर्स्ट है Anzahl der Personen, नंबर ऑफ पर्सन्स, लोग कितने हैं। Davon Kinder, उनमें से बच्चे कितने हैं। उसके बाद Alter der Kinder, बच्चों की उम्र उन्होंने खुद से लिख दी है। Wie viele Schlafzimmer, कितने स्लीपिंग रूम्स, वो भी लिखा हुआ है ऑलरेडी। Brauchen Sie eine Küche, क्या आपको किचन चाहिए, जो कि आपने लिखना है 3 में। Anreise Date लिखी हुई है, Abreise आपने लिखनी है। और Wie reisen Sie an, ऑप्शंस हैं Flugzeug, Zug oder Auto, आप किस तरह से आएंगे। इन 3 ऑप्शंस में से आपने चूज करनी है। अब हम डिटेल देख लेते हैं जो कि टेक्स्ट है, जिसको देखकर हमने इन सारी इंफॉर्मेशन को फिल करना है। Schreiben Teil 1
A1 एग्ज़ाम का सबसे इजी पार्ट होता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा जर्मन ना भी आती हो ना, तो हम गेस करके 3 से 4 ब्लैंक्स तो ठीक कर ही लेते हैं। तो इसको आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि पांचों के पांचों पॉइंट्स हासिल करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मार्क्स लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सर्टिफिकेट देकर खुशी होती है। ओके जी, इन्फॉर्मेशन ये है कि Ihr Freund Paolo Pellizzari aus Thüringen möchte mit seiner Familie, Ehefrau, 3 Kinder, 2 bis 7 Jahre alt, an der Ostsee Urlaub machen. आपका दोस्त जिसका नाम ये है, यहाँ से है, वो चाहता है अपनी वाइफ और बच्चों के साथ इस जगह पर छुट्टियां मनाना। तो यहाँ पर हमें नंबर 1 और नंबर 2 के आंसर्स मिल गए हैं। आप भी जल्दी से लिख लें कि आप क्या आंसर्स लिखेंगे। तो टोटल कितने बंदे हैं? वो हैं 5, क्योंकि दोस्त को भी आप इंक्लूड करेंगे, पाउलो को, उसकी वाइफ और 3 बच्चे। तो डाफॉन किंडर ड्राई लिखेंगे। अच्छा, फुन्फ और ड्राई इस तरह भी आप लिख सकते हैं और नंबर्स में भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। पाउलो hat 3 Wochen Urlaub, 3 हफ्ते की छुट्टियां हैं। फॉर्म ये डेट है, बिसुम ये डेट, यानी 25 जून से लेकर उसको 15 जुलाई तक छुट्टियां हैं। Er sucht eine ruhige Wohnung am Meer, वो ढूंढ रहा है एक पुरसुकून अपार्टमेंट समंदर पर। 2 Schlafzimmer, Wohnraum mit Küche, उसको 2 स्लीपिंग रूम्स चाहिए, बेडरूम्स, और उसको एक जगह चाहिए विद किचन। Wohnraum रहने का एरिया ना, तो किचन के साथ उसको चाहिए, बाथ, और साथ में जाहिर सी बात है वॉशरूम भी। अच्छा, तो इस लाइन को देखकर हमें पता चल गया है नंबर 3 का आंसर, ब्राउchen Sie eine Küche? तो इसका आंसर हम लिख देंगे या। उसके बाद है जी, पाउलो विल mit dem Auto nach Deutschland kommen, पाउलो चाहता है कार के साथ जर्मनी आना, इसका आंसर भी हमें मिल गया। और उसके बाद है schreiben Sie für Ihren Freund die 5 fehlenden Informationen in das Formular, अपने दोस्त के लिए लिखिए 5 मिसिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म में। तो अब गाइजे क्या है जी, अन गाइजे उन्होंने हमें बता दिया है, अब गाइजे हमने लिखना है। और ये भी हमें पता चल गया कि आप किस तरह से आना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। अब गाइजे होगा जी 15. Juli, 15 जुलाई, और वी गाइजन जी अन, ये आप आउटो, वर्ड आउटो लिख देंगे अपनी अंटवोट बोगन में। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ बातें बता दूँ, वो ये हैं कि अन गाइजे और अब गाइजे के और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अनकुन्फ्ट और अपफार्ट। तो ये चारों लफ्ज़ आपको अगर आते हों तो टाइल 1 आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। श्राइबन टाइल 2 हम में से काफ़ी लोगों को टफ लगता है, क्योंकि इसमें हमने खुद से एक लेटर लिखना होता है, और जैसे कि हमें पता है कि हम जितने मर्जी डिफरेंट लेटर्स के रट्टे मार लें, रियल लाइफ एग्ज़ाम में एक अनसीन लेटर ही मोस्टली आता है। तो इसके लिए हमें खूब सी तैयारी करके जानी चाहिए। तो इस एग्ज़ाम में हमें ये लेटर मिला है, Ihr Freund Christian Schmitz will Sie nächste Woche besuchen, आपका दोस्त जिसका नाम ये है वो आपको नेक्स्ट वीक विजिट करना चाहता है। Schreiben Sie, Sie können Ihren Freund nicht vom Bahnhof abholen, आप उसको नहीं रेलवे स्टेशन से पिक कर सकते, उनको लिखिए। Wie kommt Ihr Freund zu Ihrer Wohnung, किस तरह से आपका दोस्त आएगा आपके अपार्टमेंट में, ये दूसरा पॉइंट है। और थर्ड है, ये फ्राउ oder Freundin ist zu Hause, आपकी वाइफ या आपकी फ्रेंड घर पर है। तो इन पॉइंट्स पर आपने लिखना है ये लेटर। लेटर को देखकर ही हमें पता चल गया था, स्पेशली फ्रेंड लफ्ज़ से, कि आपने अपने दोस्त को लिखना है कि ये एक इनफॉर्मल लेटर है, तो इसको हम उसके हिसाब से लिखेंगे। अगर आपको डिफरेंस चाहिए कि इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर मोस्टली हम जर्मन लैंग्वेज में A1 लेवल पर किस तरह से लिखते हैं, तो मैं एक वीडियो लिंक
कर दूंगी वो आप चेक कर लीजिएगा, उससे आपको ओवरव्यू में हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह से आप स्पेशली जो बिगिनिंग और एंडिंग कैसे डिफरेंट आप करते हैं और बॉडी में क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है लेटर की, वो आपको उस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो आप कहेंगे लीबा क्रिस्टियान, उसका फुआ नाम में लिखेंगे डियर क्रिस्टियान। आगे आप फर्स्ट पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन अब चूंकि वो आपको विजिट करने आ रहा है नेक्स्ट वीक, तो अपनी खुशी का इजहार शुरू में थोड़ी सी तमहीद आप इस तरह से बांध सकते हैं कि ich bin sehr glücklich, dass du nächste Woche mich besuchst। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम नेक्स्ट वीक मुझे विजिट कर रहे हो। Das Satz एक नेबनजात्स होता है जिसकी वजह से वर्ब एंड पर चला जाता है। अगर आप फर्स्ट लाइन ये लिखेंगे ना तो बस जी एग्जामिनर समझेगा कि क्या बात है, वहीं पे आपको शायद वो सोच ले कि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स देने हैं राइटिंग के लिए। तो उसके बाद आप कहेंगे Ich kann dich vom Bahnhof leider nicht abholen। मैं अनफॉर्चुनेटली तुम्हें रेलवे स्टेशन से नहीं पिक कर सकता। Ich habe einen Termin। मेरी एक अपॉइंटमेंट है, क्योंकि वजह भी तो बतानी है ना कि आप क्यों नहीं उसको पिक कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि सेकंड पॉइंट पे हम किस तरह से सेंटेंसेस लिख सकते हैं। आपने उसको ये भी बताना है कि वो किस तरह से आपके अपार्टमेंट में आ सकता है, कुछ इस तरह से Aber du kannst mit dem Bus zu meiner Wohnung kommen। लेकिन तुम आ सकते हो बस से मेरे अपार्टमेंट में। Nimm die Linie 11 und fahr bis Kieler Straße। बस नंबर 11 ले लो और आ जाओ कीला स्ट्रासे तक। ये एक स्ट्रीट है, किसी भी स्ट्रीट का आप नाम ले सकते हैं, कोई भी इधर वर्ड रैंडम लगा के आगे आप स्ट्रासे लिख सकते हैं कि वहाँ तक तुम आओगे। तो उसके बाद फिर दोबारा से उसको रिमाइंड करा दीजिए कि आपका एड्रेस क्या है। फिर आगे आप मेंशन कर देंगे कि meine Adresse ist Kieler Straße 8। फिर लास्ट लाइन आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसको आप चेंज करेंगे, ईगे को मायने में चेंज कर देंगे। ईगे होता है आपकी वाइफ, तो मायने फ्राउ ओडर मायने फ्रेंडिन इस सुहाउज़, यानी वो घर पर होगी। फिर आप एंडिंग कर सकते हैं bis dann till then liebe Grüße Tim। अपना फुआ नाम है आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इस तरह कर लेंगे आप कंप्लीट अपना लेटर। कोयते सर्टिफिकेट A1 की स्प्रेशन के लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल 3 पार्ट्स होते हैं और आपने इसको ग्रुप में करना होता है। आप और आपके साथ 3 स्पीकिंग पार्टनर्स मिलकर इनको करते हैं। सबसे पहले टाइल 1 देख लेते हैं, जो कि होता है sich vorstellen, इंट्रोड्यूस करना। ये सारे वर्ड्स हैं जिन पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन पुट इन करके बोलना होता है। टाइल 1 स्प्रेशन का सबसे इजी पार्ट है, क्योंकि इसके वर्ड्स या इसके सेंटेंसेस अगर आप जहन में रखकर अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाएं तो इसमें आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस में बनाकर बता सकते हैं। जैसे कि Ich heiße Rida Aslam, Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Pakistan. Ich wohne in Gujarat. Ich kann Urdu, Englisch und ein bisschen Deutsch sprechen. Meine Muttersprache ist Punjabi. Ich bin Verkäuferin. Meine Hobbys sind Lesen und Musik hören। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। फकौफगिन कहते हैं सेल्स पर्सन को, तो ये फेमिनिन है क्योंकि रिदा लड़की है। अगर यहाँ पर लड़का होता तो आप क्या यूज़ करते, वो है फकौफा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देंगे और इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, जो मैं लिंक भी कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं कि इसके बाद आपको एग्जामिनर्स क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जब आप टाइल 1 अपनी इंफॉर्मेशन देकर चुप कर जाते हैं। तो फिर स्प्रेशन टाइल 2 होता है Informationen bitten und Informationen geben। इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करना और इंफॉर्मेशन देना, और इसमें आपको 2 थेमा मिलते हैं जो कि टॉपिक्स होते हैं। उनसे रिलेटेड आपको एक क्यू कार्ड मिलता है और उन क्यू कार्ड्स पे आपने अपने स्पीकिंग पार्टनर से क्वेश्चन बनाकर
पूछना होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट थेमा हमें क्या मिला है। थेमा है जी फ्राइसाइट, जो कि होता है फ्री टाइम, और वर्ड आपको मिला है फायरआबेंड। फायरआबेंड कहते हैं छुट्टी के टाइम को, जो कि हम स्कूल से या अपने काम से घर जाते हैं उस टाइम को। तो आप कोशिश कीजिए कि वे फ्रागन के साथ क्वेश्चन बनाएं, या नाइन फ्रागन को अवॉइड करें, क्योंकि या नाइन फ्रागन में तो अगला बंदा या और नाइन कह के चुप कर जाता है। तो जो वे फ्रागन होते हैं, जो कि डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड्स यूज करके हम बनाते हैं, उसमें हमारे स्पीकिंग पार्टनर को कोई सोच कर जवाब देना होता है, इसलिए फिर वे फ्रागन प्रेफर किए जाते हैं। तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं, वन हैज टू फायरआबेंड, तुम्हारी छुट्टी कब होती है? तो आंसर वो कुछ भी कह सकता है, जैसे कि 16 Uhr। सेकंड हमारा थेमा है आर्बाइट, जो कि है काम, और उसमें आपको वर्ड मिला है फिर्मा, जो कि होती है कंपनी। तो आप अपने स्पीकिंग पार्टनर से पूछ सकते हैं, वी हाइस्ट टाइने फिर्मा, तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? तो आप कोई भी आंसर कर सकते हैं, यानी कि आपका स्पीकिंग पार्टनर, या अगर आपसे किसी ने ये सवाल किया है तो आप भी किसी भी कंपनी का नाम ले सकते हैं। zum Beispiel H&M। Teil 3 होता है Bitten formulieren und darauf reagieren। रिक्वेस्ट को फॉर्म करना और उन पर रिएक्ट करना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी कि आपके लिए सबसे सेफ ये है कि आप जो रिक्वेस्ट बनाएं वो जी के साथ बनाएं, क्योंकि उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता कि वर्ब को कैसे कॉन्जुगेट किया जाए। यही हिसाब हमारा क्वेश्चंस बनाने का भी है। अगर आप श्योर हों कि आप डू के साथ वर्ब को सही कॉन्जुगेट कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं, आप डू से क्वेश्चंस बनाइए। लेकिन ज़्यादातर सेफ साइड पर रहते हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि सारे टाइल स्वाई और टाइल ढाई के जो टास्क होते हैं वो जी के साथ बनाते हैं अपने स्पीकिंग पार्टनर से। तो लेकिन मैंने इस वीडियो में स्पेशली दोनों के लिए डू का इस्तेमाल किया है कि तुम के साथ आप बात कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ी सी वैरायटी मिल जाए। तो अब हम देखते हैं कि हमें टाइल ढाई में क्या पिक्चर, क्या क्यू कार्ड मिला है। रेडियो ऊंची आवाज़ में बज रहा है। अगर रियल लाइफ एग्जाम में आपको कोई इस तरह की पिक्चर आ जाए तो आप इस तरह से रिक्वेस्ट बना सकते हैं, Die Musik ist zu laut, mach bitte das Radio leise। म्यूज़िक बहुत लाउड है, रेडियो को स्लो करो प्लीज़। और अगर आपने जी के साथ बनाना है तो ये हो जाएगा, machen Sie bitte das Radio leise। तो कोई भी आंसर आपको मिल सकता है। zum Beispiel Das ist nicht laut, कि ये ऊंची आवाज़ तो नहीं है, तेज तो नहीं है। चाय की प्याली मिली है आपको, इसको आप इस तरह से रिक्वेस्ट में चेंज कर सकते हैं, Mir ist kalt, bring mir bitte eine Tasse Tee। मुझे ठंड लग रही है, प्लीज़ मेरे लिए लाओ एक कप चाय। Oder bringen Sie mir bitte eine Tasse Tee। आंसर कुछ भी हो सकता है, zum Beispiel Ja, sicher, yes, sure, oder ich bringe gleich, मैं अभी लाती हूँ। इस वीडियो में सॉल्व किया जाने वाला एग्जाम लिया गया है फिट fürs Goethe सर्टिफिकेट आर्ट्स 2 की बुक से, जो कि इस पब्लिशर की है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जहाँ तक और एग्जाम्स की बात है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, Übungssatz 1 और 2 आपको फुल वीडियोस मिल जाएंगी। ओवरव्यू अगर आपको चाहिए कि आइंस एग्ज़ाम के कितने पार्ट्स हैं, उनमें क्या होता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये कि आंसरिंग शीट को किस तरह से फिल करना है, मैं सारी की सारी प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगी ताकि आप वो चेक कर सकें और आप अच्छे से मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ले सकें। तो मैं विश करती हूँ आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। फील लुक। क्या इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है? अगर हाँ तो मुझे लाइक और कमेंट की शक्ल में बताइए। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है A1 एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए तो अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, उसका भी एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए। अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बिस्तान।